امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کا عزم، پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ بھیجنے کا فیصلہ، وزیر اعظم نے نئے ٹیرف پر مذاکرات کا ٹاسک سونپ دیا، وفد میں معروف کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان کی بھی شمولیت۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے تجارتی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں، حکومت امریکہ کے ساتھ تجارتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہاں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک میئر سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ انسداد منشیات گردی سمیت اور دہشت گردی کے خلاف باہمی دلچسپی کے شعبوں میں بھی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 اسلام آباد میں اختتام پذیر۔ 2 روزہ سمٹ میں پاکستان کے مختلف ممالک کی کمپنیوں کے ساتھ MOUs پر دستخط۔ اختتامی سیشن سے CEO GDCL احمد حیات کا خطاب، کہا ہم پاکستان میں جدید پائیدار معدنی کانکنی کے لیے تیار ہیں، بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ ماحول دے رہے ہیں، پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے الحاق سے کانکنی شعبے کو ترقی ملے گی۔ دنیا بھر کے مندوبین کو پاکستان کے معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ امریکہ، چین، سعودی عرب، روس اور دیگر ملکوں کے مندوبین کا اظہار دلچسپی۔ مختلف معدنیات کی نمائش کا انعقاد، سرمایہ کاروں اور مندوبین نے معیار کو سراہا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے کہا کہ معدنی شعبے کو ترقی کے لیے فورم کا انعقاد خوش آئند ہے۔ معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع اور فورم بہترین پلیٹ فارم۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی وفد کی ملاقات۔ امریکہ کے قائم مقام اسسٹنٹ سیکرٹری ایرک میئر کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی تعلقات اور معدنی شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی۔ امریکی وفد نے معدنیات سے متعلق باہمی شراکت کی پالیسی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ایرک میئر کا کہنا تھا کہ امریکہ معدنیات کے شعبے میں پاکستان سے باہمی تعاون میں دلچسپی رکھتی ہے۔ پاکستان کا دہشت گردی میں عالمی برادری سے تعاون کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر داخلہ سے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک میئر کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور، 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ دہشت گردی، اسمگلنگ، انسداد منشیات شعبوں میں باہمی اشتراک کار بڑھانے پر بھی گفتگو۔ ایرک میئر کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے تحت فراہم کردہ مواقع میں دلچسپی کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی صرف پاکستان کی جنگ نہیں، عالمی برادری کو تعاون کرنا ہوگا۔ نواز شریف سیاسی میدان میں آ گئے۔ جلسے اور جلوسوں کی تیاریاں، پارٹی کو مزید منظم اور مستحکم کرنے کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عوامی رابطہ مہم کی قیادت خود کروں گا۔ وانی PTI کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا مشورہ دیتے ہوئے بولے غلط سیاسی کیسز بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو اپنی ذات کے اندر رہنے والے لوگ خامخواہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یار اگر میں آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوں تو میری ذات پہ آ جاؤ، تمہیں وہ شوق ہے دشمنی کرنے کا، اعلان جنگ کر دو، میرے ساتھ دشمنی کر لو۔ ہم تو وہ جنگ لڑ کے اپنے وہ حقوق مانگ رہے ہیں، تو اپنے حقوق تو کسی کو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نام سے کوئی لے سکتا ہے۔ دیکھیں جی، اختلافات ایک گھر میں بھی ہوتے ہیں، اختلافات جمہوریت کا حسن ہے، کسی کی رائے ہر بندے کا ایک آئینی حق ہے، آزادی رائے بھی ہر بندے کا حق ہے۔ اس کے اندر یہ جو معاملات ہیں چلتے رہتے ہیں اور معاملات جو پارٹی کے ہیں ہم پارٹی کے اندر کو حل کر لیں گے۔ کسی کو اپنے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بتا دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے بولے وہ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تمہیں بہت شوق ہے میرے ساتھ دشمنی کرنے کا۔ مخالفین کو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ دشمنی کر لو، اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، پارٹی میں اختلافات پارٹی میں ہی حل کر لیے جائیں گے۔ دہشت گردوں سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ لیگی رہنما حنیف عباسی کہتے ہیں کہ مذاکرات ان سے کیے جاتے ہیں جو ریاست کو تسلیم کرتے ہیں، فیڈریشن کو نہ ماننے والوں سے کوئی بات نہیں ہوگی، علیحدہ صوبے مانگنے والوں کا عبرتناک انجام ہوگا۔ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ معیشت بہتر ہونے لگتی ہے تو انتشاری ٹولہ سرگرم ہو جاتا ہے۔ PTI کا ایجنڈا ہے پاکستان کبھی ترقی نہ کرے۔ امریکہ اور چین میں تجارتی جنگ مزید بھڑکنے لگی۔ امریکی ٹیرف کے جواب میں چین کے 34% ٹیرف پر ٹرمپ کا پھر جوابی وار۔ چینی مصنوعات پر آج سے 104% ٹیکس نافذ۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے بریفنگ میں بتایا کہ ٹیرف پر نہ تو کوئی تاخیر ہوگی اور نہ ہی توسیع۔ صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ چین امریکہ سے معاہدہ چاہتا ہے۔ 70 ممالک نے امریکی ٹیرف کے حوالے سے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا ہے۔ ہر معاہدے میں امریکی کارکنوں کے مفاد کو مد نظر رکھا جائے گا۔ جواب الجواب، چین کا بھی امریکہ پر جوابی وار۔ امریکی مصنوعات پر 84% ٹیرف عائد کر دیا۔
अमरीका ब्लैकमेलिंग और गुंडा गर्दी बंद करे। तर्जुमान चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि अगर अमरीका अपनी जिद पर कायम रहा तो चीन अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म तरीके से जवाबी इक़दाम करेगा और आखिर तक लड़ेगा। तिजारती जंग में कोई फातेह नहीं होता। अमरीका अपनी गलतियों को फौरी तौर पर दुरुस्त करे और चीन के खिलाफ तमाम यकतरफा टैरिफ के इक़दाम को मनसूख करे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए गए टैरिफ्स के झटके, आलमी स्टॉक मार्केट्स में आज भी भौचाल। एशियाई स्टॉक मार्केट में एक बार फिर मंदी। जापान का निकाई इंडेक्स 5% कमी का शिकार हुआ। ताइवान स्टॉक 5.8% गिर गया। हांगकांग का हिंग सेंग 1.8%, जनूबी कोरिया का कोस्पी में 0.6% मंदी का रुझान। ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक भी 1% कमी का शिकार हुआ। ट्रंप टैरिफ के असरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंदी के गर्दाब में फंस गए। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मार्केट शदीद मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स 1379 पॉइंट्स गिरकर 1,14,153 पॉइंट्स पर पहुंच गए। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी, महंगाई और शरह सूद में कमी का एतराफ़। मुआशरा नमू 2.5% रहने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। IMF कर्ज प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने रवा माली साल टैक्स इस्लाहात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बिजली की कीमत 6 रुपए 62 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने दरखास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त पर 16 अप्रैल को समाअत करेगी। कीमतों में कमी की दरखास्त फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की मुलाकात। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी पर मुबारकबाद दी। कहा कि अवाम की आसानी मेरे दिल का सुकून है। IMF प्रोग्राम में होते हुए कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। अवाम से किए वादे पूरे हो रहे हैं। नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और बलूचिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल। सक्खर हैदराबाद मोटरवे जल्द मुकम्मल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ख़त। मंसूबे के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरमायाकारी की कोशिश की लेकिन मंसूबा शुरू ना हो सका। वज़ीर आज़म ने लिखा कि उनका विजन है कि कराची से पेशावर तक मोटरवे होना चाहिए जिससे मुल्क की मईशत मजबूत हो। एक सीनियर वजीर है, बड़े बहुत अच्छे वजीर हैं। इनकी करप्शन की दास्तान पे अगर फिल्म बनेगी वो कम से कम ऑस्कर लेकर आए। ये 6 कैनाल वाले मसले पर भी आप सब साफी हजरात जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफकत है वो सबके सामने। सिंध की बात करूं तो कराची से कश्मीर तक तबाही है। मुख्तलिफ महकमों में बदनवानी उरूज पर है। हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध अली खुर्शीदी कहते हैं कि हैदराबाद में तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। गुज़श्ता 17 साल से नाअहली का राज है। हैदराबाद बोर्ड में सरकार बाबू बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते हैं। पानी PTI से पार्टी कायदीन की मुलाकात का मामला। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा आमने सामने आ गए। पानी PTI से बैरिस्टर गौहर और अली जफर की मुलाकात दीगर पार्टी कायदीन को हजम ना हो सकी। सेक्रेटरी जनरल ने शेड्यूल में नाम ना होने के बावजूद मुलाकात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वानी से मुलाकात करने वाले किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने मुतनब्बह किया है कि कोई सियासी स्कोरिंग ना करे। ये फैसला है कि बानी PTI की बहनों को नहीं मिलने दिया जाएगा तो कोई नहीं मिलेगा। पानी PTI ने मुलाकात वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर की तस्दीक। कहा कि बानी से मुलाकात हर एक का हक है। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि यह अडियाला जेल जाएगा और ये नहीं जाएगा। बानी PTI ने कहा था कि कौमी मफाद में अगर कोई बात करना चाहता है तो तैयार। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान अदालत में पेश। कहा जब कोर्ट मार्शल ट्रायल होता है तो उसका पूरा तरीक़ाकार है। जस्टिस जमाल खान मंतुखैल ने रिमार्क्स में कहा हम अपील की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बुनियादी हक है। आइन में बुनियादी हुकूक दस्तियाब हैं। हमारे सामने इस वक्त वो मसला है, अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं उसमें मसला क्या है।
9 मुकदमात में PTI के गैर हाजिर कारकुनों के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अदम दस्तयाबी के बायस समात आगे ना बढ़ सकी। मुल्जिमान की हाजिरी के बाद समात मुलतवी की गई। JIT में सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा की तहकीकात जारी। PTI के 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला। मुतादिद नोटिस के बावजूद PTI रहनुमा JIT में पेश नहीं हुए। रहनुमाओं में वकास अकरम, हम्माद अजहर, जुल्फी बुखारी, ओन अब्बास और दीगर रहनुमा शामिल। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और मेयर कराची समेत दीगर सियासी रहनुमाओं, कारकुनान और अज़ीज़ व अक़ारिब की शिरकत। पीपल्स पार्टी का 3 रोज़ा सोग। चेयरमैन PP, वज़ीर आला सिंध समेत दीगर रहनुमाओं का ताज़ियत का इज़हार। पंजाब में स्टेट ऑफ द आर्ट रेफरल सिस्टम नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मरीम नवाज शरीफ ने सरकारी अस्पतालों में रेफरल सिस्टम के निफाज के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का सरप्राइज विजिट सर्विसेज अस्पताल पहुंच गईं। मरीम नवाज ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। गज़ा में इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी, जुल्म सितम पर आलमी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। आवाज़ उठाने, पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा। शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिमायत से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हुकूमती टीम तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाने के लिए मेहनत कर रही है। तहूनी फौज की गजा के इलाके शुजाइया पर वहशियाना बमबारी। कई रिहायशी इमारतें मलिया में 29 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। खान यूनिस में खैराती किचन पर हमले में 7 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। 24 घंटों में 45 हमले किए गए, 59 फ़लस्तीनी जान से गए। हमास ने अमरीकी हिमायत से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को आलमी बरादरी के चेहरे पर दाग करार दे दिया। हमास ने एक बयान में कहा है कि दुनिया की नज़रों के सामने किए गए बेगुनाह और निहत्थे शहरियों के खिलाफ वहशियाना जराइम को फरामोश नहीं किया जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी में ट्रेलर ने एक और शहरी की जान ले ली। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार शहरी कुचलकर जान बहक हो गया। लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात बोर्ड इंतजामिया के नकल की रोकथाम के दावे इस बार भी हवा हो गए। साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई का इंतबाह भी किसी काम ना आ सका। नकल करना हुआ आसान, स्क्रॉल करते जाओ, कॉपी भरते जाओ। आज भी नवी जमात का कंप्यूटर का पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप में गर्दिश करने लगा। हलशुदा कॉपी भी व्हाट्सएप ग्रुप में दस्तयाब रही। नकल माफिया चंद पैसों के एवज हलशुदा कॉपी फराहम कर रहे हैं। सक्खर, जामशोरो और हैदराबाद में भी नकल माफिया सरगर्म। मुल्क भर में गर्मी का राज। कोयटा में शदीद गर्मी, PDMA का अलर्ट जारी। अगले 2 रोज में पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुल्क के मैदानी इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध, पंजाब और KP में सूरज आंख दिखाने लगा। कराची वालों के लिए खुशखबरी, कल से बारिश मुतवक्के, गर्मी में कमी का इम्कान। ICC ने वनडे प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। भारत के शुभमन गिल की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरे नंबर पर मौजूद। रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर विराजमान। वनडे बॉलर्स में श्रीलंका के महेश थेक्शना का पहला नंबर। भारत के कुलदीप यादव की दूसरी पोजीशन। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। ट्रॉफी 1, टीमें 6। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का आगाज 11 अप्रैल से होगा। 6 टीमें टाइटल के हुसूल के लिए पंजाजमाई करेंगी। इवेंट में 34 मैचेस खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और 2 बार की चैंपियन लाहौर कलंदर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम 13 मैचों की मेजबानी करेगा। खिलाड़ी भी मैदान में उतरने के लिए तैयार। शायकीन भी फेवरेट प्लेयर्स को एक्शन में देखने के लिए बेकरार। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग की बड़ी तैयारियां। मेगा इवेंट के इफ्तिताह से कब्ल रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। ड्रोन शो, लेजर शो का भी मुजाहिरा होगा। नावर गुलकारा आबदा परवीन भी अपनी आवाज से तकरीब को 4 चांद लगाएंगी। अली जफर, नताशा बेग, तलहा अंजुम, अबरारुल हक शायकीन क्रिकेट का लहू गरमाएंगे।